Hello. So this is just the revision what you did in grade 9th, and what have you done in grade 9th is with regard to these objects such as cylinder, cone, sphere, hemisphere, cube and cuboid. In your practice set 7.1 you need all these objects formulas very well. Few of them I'll just give you the example because there are application questions you need to understand that, such as if I'm talking with regard to sphere, what object should come in my mind is the marble. So marble is a perfect sphere. So if you relate that, you can easily get this. If I'm relating the cube, I need to know how does cube looks like. You might have played Ludo, or also called as die. So snake and ladder may use that. That is actually a cube. Sometimes we do say ice cubes. So ice cubes means it's the same thing. Next is cuboid. Cuboid is nothing else but you might have seen fish tanks. Fish tank is my cuboid as an example of a cuboid, or a duster, or this remote control. These are all shape of cuboids, also called as rectangular. They are also called as rectangular parallelepiped. And some basic formulas what you require. We'll be using this. I'm not going to explain you how we got these formulas and what are we how you have done this in grade 9, but yes, in 10th grade in practice set 7.1 how we'll be using it. So how are we going about ahead? Let's just check that. Okay, so let's start with practice set 7.1. See, when there are easy numericals, I'm not going to solve you that, but still if you need some help, let me know in comment. So if you look at the first question, what does the first question says? Always write what the data is given in the question, because that will help you how to simplify the numerical ahead. So if you look at the first question, it says find the volume of a cone. So always write what you have to find, volume of a cone. So put a question mark. So it indicates that you have to find that. If the radius of its base, so how much is the radius given here? It's 1.5 centimeter, and its perpendicular height, that is h, is given as 5 centimeter. So this is the given information. Now with the help of this we have to find the volume of a cone. Now if you look into the formula for volume of a cone, so next part is you have to write the formula. Formula लिखना है. Volume of a cone का formula आएगा 1/3 pi r square h. Let's see, r these values given, r दिया है, h दिया है, substitute करना है. So क्या हो जाएगा 1/3 into pi. See, pi का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो by default 22/7 लेना है, दिया है तो 3.14. Otherwise you can do the calculation, pi 22/7 ले लो into r square. R square is 1.5 the whole square into h. h कितना है यहाँ पे 5. Now you will notice that 22/7 लेके कैलकुलेशन थोड़ा सा भारी पड़ सकता है. You can take this as 3.14. So 1/3 into 3.14 into 1.5 into 1.5 into 5. Simple calculation. 1.5 1 जा, ये तो 2 जा ही होता है, 2 1 जा 2, पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 1.57 आएगा. 1.57 इंटू 1.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना है. ध्यान रखना है, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट विच विल बी माई सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है? बिकॉज दिस इज माई रेडियस विच विल गिव यू सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज हाइट विच विल गिव यू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर विल गिव मी सेंटीमीटर क्यूब. दिस after calculation you will get the answer. Let me know the answer. Okay, let's go to the next question. Okay, so let's look at the next question. Okay, so let's go to the next question. That's question number 2, and how this goes about is they have asked you to find the volume, but volume of which figure? It's sphere. Let's see what other data or the information they have given us. They have given diameter is 6 centimeter. So they have given diameter is 6 centimeter. So therefore radius कितना हो जाएगा? 6/2, 3 centimeter. Now we have to find volume. So volume of a sphere.
What is the formula for volume of a sphere? बोलो सब, 4/3 pi r cube. Now we have to just substitute the values over here. What values will we substitute? 4/3 pi will take as 3.14 into r cube. R cube means 3 the whole cube. So it will transform as 4/3 into 3.14 into 3 into 3 into 3. This gets cancelled. 2 4 3s are 12. 12 into 3 कितना? 36. 36 into 3.14. Multiply this. Write the answer in centimeter cube. Okay. Now let me tell you. थोड़ा सा आंसर कहाँ तक आ सकता है देखो, अप्रॉक्सीमेटली बताता हूँ. 36 into 3 कर दो. 0.14 वैसे भी बहुत कम वैल्यू है. सो 36 into अगर 3 किया तो 6 is 80. 108 या 109, 110 समथिंग इसके क्लोज इसका आंसर आना चाहिए. कभी ये भी दिमाग लगाना चाहिए. Let's go to the next question. Okay, next question. Question number 3. So let's see question number 3 में what they have given us. What is the information provided? Find the total surface area of a cylinder. So the object is cylinder, and in this cylinder we have to find total surface area. So question mark, total surface area for cylinder. If the radius of its base, radius दिया हुआ है. How much is the radius given? Everyone look into the book. It's 5 centimeter is the radius. Correct? Now let's see what is the height given. Height is 40 centimeters. So 40 centimeter ले लिया. Total surface area of a cylinder का formula लिखेंगे. Do you all know the formula of total surface area of a cylinder? It is 2 pi r plus h. If I am wrong, let me know. So 2 into वैल्यू दिया है पाई का नहीं. लेट्स सी कैलकुलेशन से 22/7 इजी पड़ता है क्या? इनटू रेडियस इज 5 इनटू रेडियस इज 5 प्लस एच इज 40. सो कैसे हो जाएगा ये? 2 into 22/7 इंटू 5 इंटू 45. नाउ 7 से कैलकुलेशन तो यहाँ पे कुछ इजी पड़ नहीं रहा है. सो इसीलिए वी विल कन्वर्ट दिस इनटू 3.14 इंटू 5 2s are 10. 10 into 3.14 into 45. नाउ मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये जीरो को डेसिमल से अगर कैंसिल करते हैं तो कैसा होएगा? देखो ये 314/100 into 45. दिस गेट्स कैंसिल्ड विद दिस. ये एक जीरो ऊपर चले गया. 31.4 into 45. मल्टीप्लाई, गेट द आंसर. टोटल सरफेस एरिया है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस विल बी व्हाटएवर वैल्यू यू गेट, लेट मी नो दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन नंबर 4 स्पीक्स अबाउट. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास? स्फीयर है. बोल रहा है क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया. सो सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला. बट एक और चीज़ दिया हुआ है इसमें, वो भी यूज़ करेंगे हम लोग, विच इज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर. देखो रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला हमको पता है, इट्स 4 pi r स्क्वायर. 4 इंटू लेट्स से पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? 7 स्क्वायर. सो ये कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 22/7. ये 7 और इसका कैंसिल होता है 7. सो मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ. इंटू 7. 7 4s are 28. 28 इंटू 22. आंसर निकालो. और फिर क्या बोला है? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. सी ये कैलकुलेशन इजी है, आप लोग कर सकते हो. आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो आप लोग कैलकुलेशन में. प्लीज़ करके मुझे आंसर ज़रूर बताना. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Alright, let's go with the next question. The next question is question number 5, and let's see what is given and what we have to do it. Now the level of the questions will increase. The dimensions of cuboid are given. That means they have given that there is a cuboid. So cuboid is our rectangular parallelepiped. तो ये हमारा cuboid हो गया. Okay, थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए, सो दैट मेक्स सेंस. सो क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या दिया है ये देखते हैं. क्यूबॉइड के डायमेंशन दिया है 44 सेंटीमीटर. सो दिस इज 44 सेंटीमीटर. ओके, एंड 21 and 12. सो लेट्स से आई टेक दिस एज 21 and this is 12.
एक्सचेंज कर सकते हैं, अप टू यू, नो इश्यूज। इट इज मेल्टेड। अब देखो ये एक जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या किया है लोगों ने, दे हैव मेल्टेड दिस क्यूबॉइड, मेल्ट किया है। मेल्ट का मतलब ये होता है कि इसका जो पूरा वॉल्यूम है उसको कहीं पे यूज कर रहा है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके दे आर यूजिंग समवेयर एल्स। सो व्हाट आर दे मेकिंग आउट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज एंड अ कोन ऑफ हाइट, दैट मीन्स इसको मेल्ट करके दे आर मेकिंग अ कोन, क्या बना दिया है, कोन बना दिया है। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, और ये स्लांट हाइट है, ये राइट एंगल हो जाएगा। सो सी मेल्ट वर्ड आएगा तो एक चीज याद रखना है, मेल्ट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि दे आर यूजिंग द फुल वॉल्यूम ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है ये देखते हैं। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, दैट मीन्स इसमें हाइट मिल गया तुमको, 24 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, वो क्या बोल रहा है, ये रेडियस फाइंड करने के लिए। देखो मेल्ट बोला है, मेल्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए प्लीज, मेल्ट बोला है, सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड should be equal to the volume of a cone, okay, since it is melted, चाहिए तो रीजन लिख लो। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेट्स सी L, B और H क्या दिया है, L इज 44, 21, हाइट इज 12, इक्वल्स टू 1/3 इंटू, कोई पाई की वैल्यू दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो कैलकुलेशन के लिए 22/7 थोड़ा इजी पड़ता है, इंटू आर स्क्वायर नॉट गिवन इंटू एच, एच कितना दिया है देखो क्वेश्चन में 24 है। अब ये पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है एंड दैट अननोन इज रेडियस। अब ये रेडियस फाइंड करना है, सो क्या कीजिए, देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यहाँ पर हो रहा है 3 1 और ये 3 8 7 से नहीं हो रहा है, बाकी सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले लो, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 44 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना प्लीज, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर वो डिवीजन में थोड़ा इश्यू होता है। अब देखो ये 22 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये 7 यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू उधर जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट पे जाएगा तो, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई पे, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू व्हाट वैल्यू, आर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा कैंसिलेशंस करते हैं, देखो 22 1 2, अब अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते तो थोड़ा दिमाग चलाते, नहीं अभी चलाना है हमको। देखो फिर ये कैसा होगा, 2 1 2 4 4 1 4 3 ओके। नाउ देखो ये 21 को वैसे रहने दो, 3 इंटू 7 इज 21 और इक्वल टू आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया, सो 21 इंटू 21 इक्वल टू आर हो गया। स्क्वायर रूट का मीनिंग है 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार बाहर निकाल दो, 21 सेंटीमीटर इक्वल टू आर, सो रेडियस मिलेगा 21 सेंटीमीटर। आई थिंक यू गॉट इट। इफ यू गॉट द मेथड, सब्सक्राइब, like the channel for more update. Alright, let's go to the next question. लेवल बढ़ रहा है, अब हम लोग यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, ये लोगों ने दिया है कोनिकल वाटर जग दिया हुआ है। बहुत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा जग दिया है, ओके। नाउ ये ऐसा जग दिया है कुछ, और यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है, ओके। सो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले वो पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली सॉल्व करना चालू नहीं करना, ओके। नाउ क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे हाइट दिया हुआ है इसका, दे हैव गिवन द हाइट एज 10 सेंटीमीटर, ओके। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, देखिए इसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। लेट्स चेक विद दिस सिलेंडर। सिलेंडर में कौन सी वैल्यूज दिया है, 10 and 7, सो दे हैव गिवन द हाइट एज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इतनी इंफॉर्मेशन दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको करना क्या है,
इसलिए क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेज ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स इन फिगर 7.8 एंड 7.9। ये दो के मेजर्स देख लो। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। मतलब देखो फिर दिमाग चलाना है यहाँ पे, डिफिकल्ट नहीं है ब्रेन। ऐसे कितने जग्स इसमें आप डालोगे जब जाके ये पूरा सिलेंडर फिलअप हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ जग्स you will fill and pour inside the cylinder so that their volume becomes equal। एकदम सिंपल है। देखो फिर से वही फंडा आ रहा है, वॉल्यूम वाला आ रहा है, बट यहाँ पे मेल्ट नहीं हुआ है। मेल्टिंग वाली चीज़ नहीं है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। सो करना क्या है, देखो यहाँ पे सपोज इसका जो भी वॉल्यूम है अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी भर दिए तो समझ लीजिए क्या कुछ इतना पानी भर गया, बराबर है। 5 जग से समझ लो इतना पानी भर गया, 10 जग से समझ लो इतना। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n नंबर ऑफ सच जग्स, कितने जग इसमें पानी भर के डाला है और एक का वॉल्यूम पता है। सो इजी तरीका इसका ये है कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच जग, जो एक कोनिकल जग है इसका एक जग का वॉल्यूम इंटू n विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। मतलब टोटल वॉल्यूम देखो ये मैंने अगर 10 जग लिया होता 10 इंटू एक का वॉल्यूम तो इतना मिला होता, क्योंकि मुझे इतना पता है। यूनिटरी मेथड है सिंपल, तो मुझे ये n फाइंड करना है। ओके अगेन यू वांट टू डू इट सेपरेटली, यू कैन डू इट सेपरेटली। अगर एक साथ करना है तो एक साथ भी कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि तुमको एक साथ करने में यहाँ पे वैल्यूज नहीं फाइंड करना बट डायरेक्टली कैंसलेशन हो जाता है। सो देयरफॉर देखो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई। और यहाँ पर इसका जो रेडियस देखो ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसका रेडियस हम लेंगे कैपिटल R और कैपिटल H। कैपिटल R हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कैपिटल H हो जाएगा 10। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, अच्छा इसी में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, देखो इसमें ये स्मॉल h ले लेते हैं और ये स्मॉल r लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला आता है, पाई r स्क्वायर इंटू h, बराबर है। सो दिस पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड, बराबर है। डू नॉट कैंसल ऑल दिस r एंड h, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। सो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर h अपॉन ये r स्क्वायर और h यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड होएगा। सो r स्क्वायर h 3 डिवाइड में इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, डोंट गेट वरी। नहीं समझ में आएगा वापस एक्सप्लेन कर देंगे। r स्क्वायर कैपिटल R 7 स्क्वायर इंटू h कितना है 10 इंटू 3 अपॉन स्मॉल r। अब पहले ये भी देखो सब एग्जैक्ट यूनिट्स में है क्या, देखो ये भी सेंटीमीटर 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 ना, समटाइम्स दे डू कंफ्यूज, एक वैल्यू मीटर में डाल देंगे। सो यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, जो भी है बहुत ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। r स्क्वायर दैट इज 3.5 द होल स्क्वायर इनटू h कितना है यहाँ पे 10। ओके देख लीजिए यहाँ पर अभी क्या होगा, ये इसके साथ चले गया, बराबर है। अभी कैलकुलेशन देखो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई मत करो, डोंट मल्टीप्लाई, अपॉन 3.5 स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 हो गया ये। अभी देखो 3.5 का मतलब अगर तुम सोचो लोकल लैंग्वेज में 3.5 रुपया, 3 रुपीज़ 50 पैसे, उसका डबल कितना होता है 7। सो डबल हो गया 7 रुपया, इधर भी डबल हो गया 7 रुपया। सो अब देखो 2 2 4 4 3 12, n कितना आ गया, n का वैल्यू n आ गया 12। इसका मतलब कितने जग, ऐसे तुमको 12 जग भर के इसमें डालना पड़ेगा जब जाके इसका वॉल्यूम पूरा भर जाएगा। इज दैट क्लियर? डाउट है तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से चेक करो। कोई डाउट है कमेंट में डाल दीजिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे न्यू मेथड से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question. Question number 7. See what is given in the question. They have given such kind of an object, a cylinder and a cone. तो obviously ये मेरा cylinder हो गया और ये cone हो गया, बराबर है। Now of have equal bases. Equal bases का मतलब ये होता है कि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों का इक्वल है।
दैट मीन्स अगर ये मैं r लेता हूँ तो ये भी r ही लूँगा। द लेंथ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, तो लोगों ने ये हाइट दिया हुआ है, देखो हाइट कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये एरिया ऑफ अ बेस दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ अ बेस कितना दिया हुआ है, देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, बराबर है। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, मतलब ये कोन को इस सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज, मतलब वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सच अ सॉलिड फिगर, ये जो टोटल फिगर बन गया है इसका वॉल्यूम दे दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, सो तुमको टोटल हाइट फाइंड करना है। दैट मीन्स ये ए से लेके तो ये बी तक टोटल हाइट फाइंड करना है। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा ब्रेन को रैक करके आंसर फाइंड करेंगे। ओके, लेट्स मूव। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब ये पूरा दिया हुआ है। ओके, चलो इसको ब्रेकअप करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर, सो इट्स अ टू पार्ट, दैट इज इट इज मिक्सड अप ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, राइट और रॉन्ग, ये दोनों चीजें से बन के ये दोनों को ऐड करके वॉल्यूम मिलेगा इसका ना। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या आता है 1/3 पाई, देखो ये मैं h ले लेता हूँ छोटा h, ओके, और ये ले लेता हूँ r। नाउ एक चीज़ और नोटिस करने जैसी है, देखो यहाँ एरिया ऑफ अ बेस दिया हुआ है, बराबर है। सो अगर मुझे चाहिए तो 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख देता हूँ, ये रेडियस लेता हूँ, ये h लेता हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के लिए ये हाइट ले लेता हूँ h। सो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई, बोलो r स्क्वायर, लेकिन ये r और ये r सेम है तो यहाँ पे यही ले लिया पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया, रेडियस एंड रेडियस इन दोनों का सेम है, सो इसका फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर h आ गया। फॉर अ सिलेंडर इट इज पाई r स्क्वायर बट रेडियस सेम है h, तो h मेरा कैपिटल H हो गया बिकॉज आई टुक दिस एज h ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फिगर का क्या वॉल्यूम दिया है, देखो 500। ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, एरिया वेरिया बेस फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ अ बेस एक्चुअली क्या है ये मेरे को बताइए, एरिया ऑफ अ सर्कल है। सो एरिया ऑफ अ सर्कल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे दिया है आपको, ये पाई r स्क्वायर की वैल्यू 100 दिया हुआ है। सो यहाँ से आई कैन ईजिली टेक पाई r स्क्वायर कॉमन, देखो यहाँ पे भी पाई r स्क्वायर है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1/3 h प्लस कैपिटल H। ओके, नाउ ये पाई r स्क्वायर दिया है कितना है 100, 1/3 इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। अब देखो यहाँ पे कैपिटल H भी दिया है 3, तो अपना एक और काम आसान हो गया, इसकी जगह पे 3 आ गया और ये हो गया 500। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो 100 मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड होएगा, सो इट इज 500 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय h और ये प्लस 3। देखो छू 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 बचा क्या 5 इक्वल्स टू h/3 और प्लस 3। डोंट टेक LCM एंड ऑल दैट थिंग, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, सिंपल प्लस 3 को यहाँ लेकर आ जाओ, सो देयरफॉर 5 - 3 इक्वल टू h/3। 5 - 3 क्या देगा आपको, देयरफॉर 2 इक्वल्स टू h/3, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 × 3 is 6, h इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स ये h कितना मिल गया हमको 6। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल हाइट चाहिए, एक्चुअली नॉट हाइट, टोटल हाइट ले लेते हैं। टोटल हाइट इसका सिंपल लॉजिक है, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू माई स्मॉल h प्लस कैपिटल H। स्मॉल h कितना मिला है देखो हमको 6, कैपिटल H कितना दिया हुआ है सपोज 3, 6 + 3 9, सो टोटल हाइट हो गया इस ऑब्जेक्ट का 9 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो let's solve the next question, again not difficult, थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी आई मीन सिंप्लीफाई मेथड में करना पड़ेगा। देखो कभी भी क्वेश्चन को देखते हैं सीधा भागो मत,
सोचो कि कैसे सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फिगर के अंदर बोला है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, मतलब दे मीन टू से फाइंड द टोटल एरिया। सो टोटल एरिया के अंदर ब्लाइंडली कोई भी फॉर्मूला मत लगा देना, पहले समझो कि टोटल, देखो टोटल एरिया ऑफ अ टॉय बोला है। सो टोटल एरिया के अंदर आएगा क्या, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स आएगा वो देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। पहले ये आएगा विच इज़ माई हेमिस्फीयर। सो मुझे हेमिस्फीयर का टोटल एरिया चाहिए, बट टोटल एरिया मतलब हमको क्या ये पोर्शन भी चाहिए अंदर का, हमको सिर्फ चाहिए बाहर का पोर्शन। देख लो क्वेश्चन फिर से एक और बार। अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन है शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। सो टोटल एरिया मतलब ये बाहर का एरिया सिर्फ पूछ रहे हैं, अंदर का एरिया नहीं चाहिए, माइंडेड। आगे देखो, सो ये हेमिस्फीयर चाहिए। दूसरा सिलेंडर, बराबर है। और थर्ड क्या है, ये है कोन है, कौन है कौन, कौन नहीं भाई कौन। अभी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया चाहिए, इसका भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए और इसका भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए, और तीनों को ऐड करना है। तो देखो तीनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके तीनों को ऐड करना है, टोटल एरिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, सो क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर का, सिर्फ बाहर का पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू और पाई 22/7 इंटू रेडियस। पता है क्या रेडियस, देखो रेडियस 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेम रेडियस यहाँ पर भी आएगा। सो ये भी रेडियस 3 हो जाएगा। सो ये हो गया 3 स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर आ रहा है तो ये मुझे हेल्प नहीं करेगा कुछ भी, इसलिए इसको पाई ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 2 हो जाएगा 18 पाई रहने देते हैं, काम आएगा कहीं ना कहीं, आगे देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, बराबर है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर h दिया है क्या, ओ यस ये मिस हो गया था, h दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। सो 2 पाई को रहने देते हैं, रेडियस 3h कितना है 40, 4 3 12, 12 इंटू 240 पाई हो गया ये, बराबर है। अभी फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल, बट देख लीजिए ये हाइट दिया है, रेडियस दिया है, एल नहीं दिया है, और ये राइट एंगल है। क्या करेंगे फिर हम यहाँ पे, ये केस में हम ये स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। स्लांट हाइट बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, आता है कि नहीं भाई, ये सीखा है ना, ठीक है। सो देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, ऐड करो 25। Therefore next step पे हो जाएगा L is root of 25 which will give me 5 सेंटीमीटर। L मिल गया भाई, ये भी करने का, डोंट मिस दिस, मार्क्स मिलेगा, नहीं करेगा मार्क्स जाएगा, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी L कहाँ से मिला, L यहाँ से मिला, पाई इंटू आर, आर तो सेम ही रहेगा, 3 इंटू L कितना है 5, 5 3 15, ये हो गया 15 पाई। सेफ साइड पे कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, टक 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 टक, आगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टक 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 टक, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या मिल गया, 18 पाई प्लस 240 पाई प्लस 15 पाई। अब देखो यहाँ सब जगह से पाई कॉमन ले लो, या फिर इन सबको, दूसरा ट्रिक ये है कि ऐड कर दो 240, देखो 240 प्लस 15 कितना हो गया 255, 273 पाई हो गया। तुमको सिर्फ इसमें वैल्यूज डालना है और आंसर निकालना है, आंसर के लिए इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पहले समझेंगे, थोड़ा ट्रिकी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 10 तक पहुंच रहे हैं, लेवल बढ़ेगा।
लेवल बढ़ेगा तो दिमाग से आंसर्स निकलना चाहिए। कैसे करोगे सॉल्व देख लीजिए। इन द फिगर 7.12 दे हैव गिवन दिस फिगर, अ सिलेंड्रिकल रैपर, सिलेंड्रिकल शेप में है। रैपर समझता है, रैप कर रहे हैं किसी चीज को, और यह सिलेंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज शोन, द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 मिलीमीटर। मतलब वो बोल रहा है कि रेडियस जो है उस टैबलेट का, टैबलेट मतलब एक गोली जैसा होता है ना छोटा सा, तो ये ऐसा ये टैबलेट बन रहा है, ठीक है। ये टैबलेट का जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, ओके। एंड इट्स थिकनेस, इसका ये जो थिकनेस है ना ये दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, ओके। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, वो बोल रहा है ये छोटी छोटी टैबलेट्स बनाएंगे और इसको ये कवर के अंदर रैप कर देंगे, ओके। सो बेसिकली आइडिया क्या होना चाहिए, देखो ये टैबलेट है, जब इसको बना के इधर अंदर रख रहे हैं तो एक्चुअली ये सिलेंडर शेप का जो भी पेपर है या जो भी है उसका वॉल्यूम यूज करेगा ना अंदर का। बाहर का पोर्शन तो ये पेपर का यूज नहीं कर रहा है और ये भी पोर्शन यूज नहीं कर रहा है। मतलब ये ऐसा है कि मेरे पास एक ये डब्बा है, इसके अंदर मैं भरते जा रहा हूँ, कुछ भरते जा रहा हूँ तो ये पूरा भर गया, मतलब अंदर का वॉल्यूम यूज किया ना मैंने। सो क्या दिमाग चलाना है, हमको वॉल्यूम यूज करना है। दैट मीन्स इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है और इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। ये सेम एग्जाम्पल किस में जाता है, जो जग वाला क्वेश्चन था। जग छोटे साइज का था, वॉल्यूम कम था, सिलेंडर भर रहा था। यहाँ पे छोटा क्या है, ये टैबलेट है, गोली खाने का नहीं, सस्ती वाली। सो ये टैबलेट का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करेंगे और ऐसी कितनी n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू बड़े वाला वॉल्यूम जो ये है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, आइडिया क्लियर हो गया है, बराबर है। मतलब इसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, इसका भी वॉल्यूम हमको फाइंड करना है और n टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दिस। अब नजर रखना है, यहाँ दुर्घटना घट सकती है, देख लो ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है। क्यों ना इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, सो दैट ऑल ऑफ देम आर इन द सेम सिस्टम। सो ये 10 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर कैसा हो जाएगा, ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा, टेंशन खत्म। सो अभी हम क्या लिखेंगे, सिंपल n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, मतलब n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ रैपर, जो ये रैपर है हमारा, ठीक है। नाउ n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट, ये छोटे टैबलेट का वॉल्यूम निकालना है। देखो क्या शेप है, कौन दिखता है, क्या हेमिस्फीयर दिखता है क्या, अरे भाई सिलेंडर है, छोटा सा सिलेंडर है। ये सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। छोटा है तो स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लिया, जो छोटी चीज होती है उसके लिए छोटा रेडियस हाइट, जो बड़ा है उसके लिए बड़ा रेडियस और हाइट। अब देखो फिर से धोखा है, इधर धोखा, ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 7 मिलीमीटर। आंखें खुली, दुर्घटना से बची। सो देख लो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ रैपर विच इज पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच। हमको तो ये फाइंड करना है, ये और ये छू। स्मॉल आर देख लो कितना दिया है, दिख रहा है ये स्मॉल आर, ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है देख लो 5, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू कैपिटल आर। देखो ये डायमीटर नहीं है, ये रेडियस है अभी हमारे लिए। सो ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, ये देख लो क्या हाइट है 100, तो 100 ले लो वाह 100। n इक्वल्स टू, क्या सिंपल क्वेश्चन था यार, पूरे एक्सरसाइज के अंदर इससे सिंपल क्वेश्चन था ही नहीं। ये देखो छू छू, अब क्या बच गया राइट में 100, ये 5 इधर आके डिवाइड। अरे ये तो बनिया भी अच्छा बताएगा, तुमको भी बताना है। 5 1 जा 5 2 जा 20, कितनी टैबलेट हो गई 20। ये देखो क्वेश्चन इतना बड़ा, सॉल्यूशन तो देखो कुछ भी नहीं। दिमाग क्या लगाना है, दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। लग रहा था डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ गई। यहाँ अगर सिर्फ इतना पता होता ना हमको कि वॉल्यूम यूज करना है, अरे डेफिनेटली आप लोगों ने पूरा अच्छे से, अरे यू ऑल आर सो स्मार्ट, कीप गिविंग योर बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट इट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके
Next question number 10. Figure is something like this. Excuse me if the figure is incorrect. I mean इतना अच्छा नहीं है जितना टेक्स्ट बुक का है. अच्छा बच्चा हंस रहा है, थोड़ा सा कम हंस रहा है, बट मैनेज कर लेना प्लीज़. ओके, फिगर शोज अ टॉय. देखो टॉय दिया है, इसका लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर, मतलब ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है. ओके, एंड द अपर पार्ट इज अ कोन. तो ये कोन है, दैट मीन्स ये पूरा जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है. फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. नजर रखना है किस पे, क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. ये दो चीज़ों पे नजर रखना है. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन बिलो. एक और चीज़ दिया है, भूलना नहीं. अगर अभी तुमने पाई का वैल्यू 22/7 लिया तो रॉन्ग मिल सकता है. पाई 3.14 लेना ही पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. सो वॉल्यूम चाहिए और सरफेस एरिया चाहिए. सो क्या करेंगे सबसे पहले? देखो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय. अब ये वॉल्यूम दो पार्ट में बट गया है. एक है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, सो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर. देखो शॉर्टकट बताना मेरा काम है, मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा. वॉल्यूम ऑफ अ कोन फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको स्मॉल आर, ये स्मॉल एच ले लेते, स्मॉल आर लेते, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर मतलब ये वाला पार्ट. अब वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब है क्या नहीं भाई? क्योंकि स्पीयर का तो 4/3 होता है और ये स्पीयर का आधा होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया. तो इसका आंसर 2/3 पाई आर क्यूब है. 2/3 पाई आर क्यूब बराबर है. नाउ सिंस दोनों में भी रेडियस सेम है तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है भाई. ये देखो ये पाई और ये आर स्क्वायर, ये पाई और आर क्यूब सेम है ना. सब जगह नहीं चलता है लॉजिक, सिर्फ यहाँ चलेगा बिकॉज रेडियस सेम है. सो ये पाई और यहाँ से आर स्क्वायर, मतलब यहाँ 3 आर है, मैं 2 आर बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट के, तो देखो कैसा आ जाएगा ये. और यहाँ पे देखो ना ये 3 भी कॉमन आ रहा है. थोड़ा ट्रिकी है दोस्त, लेकिन सीखोगे. 1/3 बाहर ले लिया, मतलब 1 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, और क्या ले लिए? पाई भी ले लिया हमने, आर स्क्वायर भी ले लिया. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया. क्या बच गया यहाँ पे? एच प्लस यहाँ से तो 1 और 3 सिर्फ बाहर आया, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा. पाई बाहर आ गया. आर क्यूब मतलब 3 आर, 3 में से मैंने 2 बाहर ले लिया, बचता है 1 आर, तो यहाँ पे ये ऐसा बच गया. शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, अलग अलग सॉल्व करके नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है. पेपर फिनिश करना है कि नहीं बिफोर 15 मिनट्स, गो थ्रू करना है कि नहीं पेपर, बराबर है. सो शॉर्टकट मेथड करेंगे. सो 1/3 पाई दिया है 3.14 इंटू रेडियस है हमारे पास 3 स्क्वायर. एच देखिए कितना है, ये 4 है, बराबर है. ओके, प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है, ये 3 है. सो यहाँ से देखो ये एक और ये एक गया. सो 3.14 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 होता है 10. 3.14 इंटू 3 इंटू 10. 3.14 को ऐसा भी लिख सकते हैं 314/100 इंटू 3 इंटू 10. ये गया और ये गया. अब 314 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 0. डेसिमल कैंसिलेशन कभी करना नहीं, डेसिमल में रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए डिनोमिनेटर में जब भी 100 आए या 10 आए, लीव इट एज इट इज, फायदा है उसमें. देखो 314 इंटू 3 करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 4, 3 3 ज़ा 9, बराबर है बच्चे लोग, अपॉन 10 है तो वो डेसिमल हो गया ऐसा. सो 94.2 वॉल्यूम पूछा है और ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. 94.2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बराबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम फॉर बीच बॉल शोन इन द डायग्राम. तो इसका देखो मैं पूरा नहीं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, टाइम वेस्ट होगा. तो डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 42 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर दिया हुआ है. सी बीच बॉल बोल रहा है तो स्पेरिकल शेप में है और इसका डायमीटर तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा. सो 42 सेंटीमीटर थ्रू आउट सेम रहेगा, बराबर है. नाउ हमको तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है
ठीक है, और सरफेस एरिया। सिंपल है ये क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रीजन बताता हूँ क्यों। ये 42 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर रेडियस होगा ना, यहाँ पे तो रेडियस चाहिए। सो 21 क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा 3 और 3 गया, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। सॉल्व करके आंसर निकाल के बताना ज़रूर, और इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर ये बोला है फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 21 का स्क्वायर है। सो ये कैसे हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। सरफेस एरिया है, भूलना नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Alright, last question for the day, and I hope you understood the whole exercise. We'll be going for the next exercise in the later session. So last question, a bit tricky, smart as you all are, smart as thirsty crow. Have you heard about the story of a thirsty crow? क्या होता था थर्स्टी क्रो के अंदर? क्या किया था उसने? He saw very small amount of water inside the pot. He started picking up the pebble and he started inserting it inside the pot. पानी ऊपर आते गया। That means वो जो पेबल्स डाला है उसमें कुछ तो वॉल्यूम था, और वो वॉल्यूम उस पानी के अंदर ऑक्यूपाई होते गया। सो पानी का लेवल ऊपर आते गया। दैट मीन्स द टोटल वॉल्यूम इज नॉट ओनली ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो जो पेबल्स डाला है, जो छोटे छोटे पत्थर डाला है, उनका भी तो वॉल्यूम था। सो यहाँ पे जो रेड मार्क में है, ये पूरा हाइट जो है ये पानी का है। नाउ इसमें अगर एक छोटा सा पेबल डाल दिया है तो उसका वॉल्यूम इसमें ऐड हुआ ना, तभी तो पानी ऊपर आ गया। अच्छा, अब अगर इसमें से मैं पेबल निकाल दूँ तो ये पानी का लेवल कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइट है, इट इज इंक्लूडिंग अलॉन्ग विथ दिस, दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। हमको पूछा है पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो देखो कैसा करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये फाइंड करना है हमको ये। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर वॉल्यूम ऑफ दिस पेबल भी आएगा कि नहीं? आएगा ना। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला यूज करूं तो ये जो हाइट है और ये रेडियस है, इसमें से मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर पानी के अंदर तो इसका वॉल्यूम ऐड हो गया है ना, तो इसका निकालना पड़ेगा हमको। ये वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो पानी के अंदर से इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है वॉल्यूम ऑफ ये वाटर जो बोल रहा है, तो इसको कैसा करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू वाटर लेवल, ये वाटर लेवल तक पूरा सिलेंडर, माइनस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो इसके अंदर डाला गया है स्फीयर, उसका वॉल्यूम, बराबर है। सो अभी कैसा करेंगे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अप टू वाटर लेवल, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर है। लेकिन ये कैपिटल है इसलिए मैं इसका कैपिटल आर लेता हूँ और ये कैपिटल एच ले लेता हूँ, बड़ा ऑब्जेक्ट है, माइनस इसका वॉल्यूम निकालना है, बराबर है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आता है? 4/3 पाई छोटा है इसलिए आर क्यूब ले लेते हैं। बेसिक आइडिया समझ में आ गया। क्या करना है हमको? मैंने जैसे ये पेबल अगर यहाँ से निकाला तो क्या बचेगा? पानी बचेगा, लेकिन पानी का तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। ये 30 सेंटीमीटर हाइट जो दिया है इसके अंदर वॉल्यूम इसका भी एडेड है, वो वॉल्यूम हमको रिमूव करना है, इसीलिए ये ऐसा किया है, ठीक है। पाई तो कॉमन आ जाएगा, दोनों में ले लिया। आर स्क्वायर, देखो ये 14 सेंटीमीटर ये डायमीटर है,
तो इसका जो कैपिटल R है वो 7 हो जाएगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर इंटू h, जहां तक ये हाइट है ये पूरा लेना है हमको, हाइट कितना है 30, तो ये आ गया 30 माइनस 4/3, पाई बाहर आ गया है। ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज द डायमीटर, डायमीटर 2 है, तो देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर रेडियस लेना ही पड़ेगा ना, सो ये हो गया 1 क्यूब। नाउ पाई इंटू 7 स्क्वायर, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा, 7 स्क्वायर इज 49 इंटू 30 माइनस 4/3 और 1 क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक है, अभी पाई की वैल्यू दिया है नहीं, अगर 22/7 से होता है तो उसको सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्टली आंसर भी फाइंड करके लिख सकते हैं। पाई 22/7 लेके कुछ सोल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिलता है, 3.14 ही ले लो इसको, और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1 है मल्टीप्लाई बाय 3, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 इज 9, 49 इंटू 90 माइनस 4/3, और ये हो गया 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 49 इंटू 90 माइनस 4/3, तो कैसा हो जाएगा देखो 49 इंटू 9, सो ये हो जाएगा 4410 माइनस 4/3, और ये 3.14। अब 4410 माइनस 4 कर दो, तो ये तो बच गया क्या, 6 बच गया, सो 4406 आ जाएगा, 4406 और /3, ये 3 से जाता है क्या देखिए, 6 + 4 10 14 नहीं जाता है, तो ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, वो आपको दे देगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। लाइक